Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jani Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jani Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Patita Pavan Gauranitai. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Patita Pavan Gauranitai. Jaya Panchatattva, Panchatattva, Kaliyuga Pavan Panchatattva. Jaya Panchatattva, Panchatattva, Kaliyuga Pavana Panchatattva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Sai Gaura Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, 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 Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलिबावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परम पुरुषोत्तम मास की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। पुरुषोत्तम योग की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भगवत कथा में प्रवेश करण खां पहिरीं गुरु ऐं गौरंग खां कृपा जी याचना कंदे मंगलाचरण कंदासीं ताकि असां जेकी कुझु ॿुधण वारा आहियूं उन जो असांखे पूरो पूरो
लाभ प्राप्त थी सघे, जेको आहे कृष्ण प्रेम जी प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 जंहिंजो नालो आहे पुरुषोत्तम योग। असां उनखे पढ़ी रहिया आहियूं। कल्ह असां उनजो सेकेंड श्लोक पढ़ियोसीं। फर्स्ट ऐं सेकेंड में माना शॉर्ट में कोई ॿुधाईंदो असां छा पढ़ियो आहे? पहिरें श्लोक में छा पढ़ियो ऐं सेकेंड में छा पढ़ियो? और गुणों से निकलने का गुणों के निकलने से भगवान श्री कृष्ण के जो गुणों से मतलब आज़ाद है, जिन पे गुणों का कोई असर नहीं है, उनके पास जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो गुण जो है वो इस वृक्ष का पानी है, मतलब जैसे हम सींचते हैं तो इससे गुण वृक्ष जो है ऊपर नीचे जा रहा है। और एक चीज़ कि वो कौन सा, हमने कल एक और चीज़ डिस्कस की थी कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हम इस वृक्ष में बंधन में फंसते हैं, और वो कौन सी चीज़ है जिससे हम इस बंधन से निकलेंगे। माया फंसाने वाली। एक बहुत स्पेसिफिक बात थी जो मैंने बहुत डिटेल से बोली थी। कौन सा योनि होगा जिसमें हम क्या करेंगे और फिर है ना उसके कारण हम बंधन में फंसते हैं। लास्ट लाइन थी कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, है ना। जब हम मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ओनली फॉर
ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ये सिर्फ इंसानों के लिए ही ये शास्त्र है, और वही इंसान अगर शास्त्रों के अनुसार नहीं जीता है और वो गलत कार्य करता है, कर्म गलत करता है, तो वो फंस जाता है। तो आज हम ये तो हमने जान लिया कि गलत कार्य करने से फंसते हैं, तो इसका मतलब है अगर शास्त्रों के अनुसार सही कार्य करेंगे तो बंधन से मुक्ति भी हो जाएगी। तो आज हम इस अध्याय का श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर है, 3 और 4 ये दोनों एक साथ आएंगे। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष मैंने तुम्हें बताया ना अर्जुन, ऐसा कोई वृक्ष है ही नहीं, मतलब ऐसा है ही नहीं। तो मैं तुमको एग्जाम्पल से कैसे समझा सकता। भगवान कहते हैं ना न रूपम रूपम अस्येह अस्येह तथोप लभ्यते लभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। न रूप मतलब ऐसा किसी भी वृक्ष का ऐसा रूप नहीं है, मतलब ऐसा कोई हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है। मस्येह, एह मतलब इस वृक्ष का, तथोपलभ्यते पाण सिंधी में चवंदा हो ना लभंदो ई कोन आहे, तो लभ्यते वो संस्कृत में भी ऐसा ही आता है। न रूप लभ्ये न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कि ऐसा कोई वृक्ष तुम्हें दिखेगा ही नहीं। कैसा? जिसकी जड़ें ऊपर होंगी, शाखाएं नीचे होंगी, और उसको गुणों के द्वारा उसको पानी दिया जाएगा और कर्मों के कारण उसकी शाखाएं ऊपर नीचे आती जाएंगी। तो ऐसा कोई वृक्ष तो दिखेगा नहीं। और आगे भगवान कहते हैं कि ना तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस वृक्ष का कोई अंत भी नहीं है, इसकी कोई आदि भी नहीं है, और इसकी कोई आधार भी नहीं है। मतलब अब रिफ्लेक्शन का क्या अंत होगा, क्या आदि होगा, क्या आधार होगा? वो तो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। मतलब भगवान ऐसे कहते हैं। और आगे कहते हैं अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम, लेकिन फिर भी जो ये वृक्ष है सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब तुमको क्या करना पड़ेगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि तुमको इस वृक्ष को एक शस्त्र का नाम बता रहे हैं भगवान। शस्त्र का मतलब क्या होता है? वेपन, जिससे हम लोग किसी को काटते हैं। तो बोला तुमको, तुम्हारे पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे तुमको ये वृक्ष काटना पड़ेगा। तो मानो अर्जुन ये पूछते हैं, जब इस प्रकार आप जब बोल रहे हो कि इस प्रकार के वृक्ष का कोई रूप है ही नहीं, इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? फिर इसको काटूं तो कैसे काटूं जब ये दिखता ही नहीं है? तो भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, ये सारा जो भौतिक जगत है ना, ये सिर्फ एक सपने की तरह, एक छलावे की तरह, एक रिफ्लेक्शन की तरह है। लेकिन फिर भी हमने ना अपने आप को इसमें इतना स्ट्रॉन्ग जकड़ लिया है। हम सब जो हैं वो इतना इस भौतिक जगत में अपने आप को इतना जकड़ लिया है कि हमको लगता है बस हम यही हैं जो हमें दिखते हैं। इस है तो रिफ्लेक्शन है, उसका कुछ भी, ऐसे बोलते ना, कहो नानी कि किच थिरु कुछ ना ही सपने जियो संसार, इसमें कुछ भी नहीं है, रियलिटी नहीं है। लेकिन हमने जैसे कभी कोई ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, तो सपने में वो देखता है कि मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ, मेरे पीछे 4 चोर लग गए हैं और मैं चोरों से बचने के लिए जा रहा हूँ, तो इधर से कोई है ना बहुत खतरनाक शेर जो है ना वो मुझे खाने के लिए आ रहा है, और शेर से बचने के लिए मैं इस तरफ से जाता हूँ तो उधर मुझे लगता है कोई किंग कोबरा मेरे लिए खड़ा है, और उस तरफ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना एक बहुत बड़ा खाई है जिसके अंदर आग जल रही है, मैं उसमें आ रहा हूँ। अभी वो व्यक्ति ना इधर जा सकता है, 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 तो वो हर जगह से परेशान है ना। लेकिन है वो किस में? सपने में है। उसकी परेशानी को निकालने के लिए क्या करना है? खाली उसको जगाना है बस। परेशानी निकालने के लिए और कोई एफर्ट्स नहीं देने हैं, खाली क्या करना है? वो जाग जाएगा ना तो मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन वो ना
जागना चाहता ही नहीं है। बोलते नहीं, बस मैं, मुझे जागना नहीं है, बस मैं शेर से बच जाऊं, बस मैं चोरों से बच जाऊं, बस मैं नाग से बच जाऊं, बस मैं अग्नि से बच जाऊं। और वो बस खाली उनको उसमें से बचने का प्रयास करता है। मुझे रहना तो सपने में है, लेकिन इनसे छूटूं। लेकिन वो बेवकूफ है, उसको खाली जागना पड़ेगा कि आप सपना देख रहे हो और ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यही है ना। तो उसी तरह से ना हम लोग, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, सपने दो तरह के होते हैं। एक सपना वो होता है जब आप रात को सोते हो 12 बजे, सुबह को आप 5 बजे उठते हो, तो ये 5 घंटे आपकी नींद होती है ना, इसके अंदर आपका एक सपना होता है। तो वो आप उठते हो तो आप उसको भूल जाते हो जल्दी से ना, सुबह याद भी नहीं रहता अक्सर कि मुझे क्या सपना। एक सपना ना वो क्या होता है कि आपने जब से जन्म लिया है तब से आप देख रहे हो, और वो आप कहाँ सोए हुए हो, आपका जो असली स्वरूप है वो भगवान के धाम में सोया हुआ है। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, वो भगवान के धाम में सोया हुआ है, और वहाँ पर आप सपना देख रहे हो। क्या सपना देख रही हूँ मैं वहाँ पर सोई हूँ भगवान के धाम में, और मैं देख रही हूँ मैं प्रिया वल्लभा हूँ, मेरा जन्म हुआ है पाकिस्तान में, और मैं वहाँ पर ये सेवा कर रही हूँ, मुझे ये काम करना है। ये सब क्या है? कोई ये सोचता है मैं है ना, सब जो ये माता जी सोचेंगी मैं ईशा माता जी हूँ, मैं इन बच्चियों की मैं माता हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, आपको लगेगा मैं ये हूँ। मतलब हम सब जो हैं वो ये जो अवस्था है जिसमें हम अपने को शरीर मानते हैं या कुछ और मानते हैं। शरीर मानते हैं, कोई डॉक्टर मानता है, कोई इंजीनियर मानता है, कोई साइंटिस्ट मानता है, जो भी मानता है, असल में वो उसका स्वरूप है ही नहीं। वो मान रहा है भगवान के नाम में सपना देखते हुए, बस उसको अब क्या है, इसके अंदर हमारे इस जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम हर रोज क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, फेस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, बस जागना है। अगर हम जाग जाएंगे कि अरे ये तो सपना है, मेरा रियल स्वरूप तो भगवान के नाम में आनंद है, भगवान के नाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी मत्थाकुटी नहीं है, बस खाली सुख है, आनंद है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको जागना नहीं है, हमको इसी संसार में, इसी सपने में ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है और मुझे आनंद करना है। हम वो उसके लिए तो हमको लगता है कि वो बेवकूफ है जो सोया हुआ है हमारे सामने, वो क्यों नहीं जाग रहा है यार। जाग जाए तो सांपों से, नागों से, चोरों से बच जाएगा। लेकिन अपने लिए लगता है कि नहीं, मेरा तो ये सही है, मतलब ये लाइफ सही है, मुझे कोई आध्यात्मिक लाइफ के बारे में चिंतन नहीं करना। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं ना, वो एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं। वे कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया, पिशाचिनी कोल। कि ये माया एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी डाकणी होती है ना, जो भूतनी, जो कोई बहुत बड़ी, इसको क्या बोलते हैं, डायन, वो डायन है ये। जो माया तुमको ये बता रही है कि तुम भगवान के नहीं हो, तुम कुछ और हो, जो तुमको संसार से जोड़ती है ना, वो एक बहुत ही खतरनाक डायन है। वो तुम उसकी गोद में तुम आराम से सोए हुए हो, इसलिए तुम जागो जागो, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम भगवान के नाम के हो। हम सब भगवान के नाम के हैं, हम सब भगवान। जैसे हमें घर लेते हैं ना, तो हम घर कैसे लेते हैं, हमारे 4 बच्चे होते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा धन होता है तो क्या करते हैं, भाई ये मेरे बड़े बेटे का कमरा है, ये मेरे छोटे बेटे का कमरा है, ये मेरी बेटी का कमरा है, ये मेरी छोटी बेटी का कमरा, ऐसे करके हम लोग सबके लिए रूम रखते हैं ना कि भैया। उसी तरह से भगवान क्या कहते हैं, पितामहस्य जगतो, इस जगत में जितने भी जीव है ना, उनका पिता मैं हूँ। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है ना, उसमें हम सब की स्पेस है, सबके लिए एक जगह है। भगवान सबके लिए अपना ये वैकुंठ बनाए। अब क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे जो हैं वो
बेकार काम करते हैं कुछ या कुछ गलती करते हैं और फिर पिताजी उनको बोलते हैं तुम ना इस लायक नहीं हो कि मेरे घर पे रहो, निकलो मेरे घर से। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बाप जो है ना वो बेटा कोई गलत काम करेगा, नशा करेगा या फिर है ना गलत दोस्ती करेगा, 2-3 दफा समझाएंगे पिताजी, बोलेंगे अगर ये हरकत रही ना तुम्हारी, मैं अपने घर, मेरे घर में जगह नहीं है तुम्हारे लिए, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तो हम सब ऐसे ही हैं, हम सब भगवान के धाम में भगवान के आदेशों का पालन नहीं किए। भगवान ने कहा निकलो, फिर भगवान को लगा अभी बाप है आखिर तो भले निकालेगा, फिर भी उसको लगेगा ना कि यार मैंने, मेरा बच्चा है अभी वो संसार में जाकर दुखी है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि वो वापस से आ जाए। तो बाप क्या करता है, बाप जो है वो क्या करता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और एक ना वो बनाता है, एक क्या बनाते हैं कि भाई आप अनाउंसमेंट करवाता है कि आप, मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ कि तुम आ जाओ, बस तुमने जो गलतियां की वो मैं माफ कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम आ जाओ बस मेरे पास, मेरे घर में आ जाओ, है ना, ऐसे बोलेगा। तो उसी तरह से भगवान, हमने सबने गलतियां की, भगवान ने हमको संसार में भेजा और फिर भगवत गीता में लिखा, भगवत गीता एक अनाउंसमेंट किया, उसमें क्या लिखा भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम छोड़ो सबको, तुम मेरे पास आ जाओ, और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमने जो गलतियां की हैं, तुमने जो पाप किए हैं, अब वो मुझे पता है कि तुमने क्या क्या किया है, लेकिन अहम, मैं हूं ना तुम्हारा बाप, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं माफ कर दूंगा तुमको, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ खाली हमारे पास। भगवान अनाउंस करते हैं और हम बोलते कि नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी यहाँ पर ही सही हूँ, वापस से जाने का है ही नहीं। आज देखो संसार में 99% लोग जो होते ना, उनको भगवान के पास जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है कि हम भगवान, इवन उनको लगता है कि बस भगवान के पास क्या जाना है, इस संसार में ही अपनी ड्यूटीज पूरी करो, पुण्य कर्म करो, खुशी से रहो। अगर भगवान के मंदिर भी जाएंगे ना तो भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भगवान मुझे अपनी भक्ति दो, या मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवान मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटाओ। कोई ऐसी प्रार्थना करता है आज? ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता। क्या करते हैं जाके प्रार्थना कि भाई हे भगवान मेरा धंधा नहीं लग रहा है, तो आप कोशिश कर, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा है ना धंधा लग जाए। किसको बेटा नहीं होगा तो बोलेंगे भगवान मुझे बेटा हो जाए, कि कोई है ना पास नहीं हो रहा है तो भगवान से बोलेंगे भाई मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं पास हो जाऊं। कोई मतलब जो भी इस संसार की जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उसी के लिए भगवान के पास जाते हैं ना। कभी ये नहीं बोलते कि भगवान बहुत हो गया, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है, बस अभी मुझे आपके धाम आना है, मुझे मुक्ति दे दो। कोई भी वो ऐसे बोलते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ जहाँ फंसे हुए हो ना, वो बहुत खतरनाक जगह है। ना रूपमस्य है तथोपलभ्यते, ये जो 3rd श्लोक है इसमें भगवान बोलते हैं बहुत खतरनाक जगह है। तुम एक ऐसी जगह पे आ गए हो जैसे कसाई के पास, वो कसाई होता है ना, उसके पास जब बकरियां आ जाती है ना तो फिर वो बहुत ही खतरनाक जगह पे होती हैं, है ना। कसाई जो है वो किसी भी टाइम पर उसको उठा के काट सकता है। और वो ऐसा ही होता है, जैसे अगर 15 बकरियां आई है ना तो वो क्या करता है, एक सेंटर में एक है ना जगह होती है जिसमें वो चारा डालता है, पानी डालता है, और वो बकरियों को बोलते हैं तुम वहाँ पे आराम से खाओ। और उसमें से एक बकरी को लेके आता है, उसको कटिंग करता है, उसको सेल आउट करता है। बाकी सारी जो बकरियां होती हैं ना, वो सब क्या कर रही होती हैं, वो चारा खा रही थी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कट गई है वो उसको लगता है अच्छा वो कट गई, हम ना जैसे खाते हैं, ऐसा लगता है ना। तो उन बकरियों को कोई भी ऐसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो सब कट रही हैं, जो कट रही है। उसी तरह से हम लोग भी हैं। उस बकरियां तो बेचारी अक्ल नहीं है उनको, लेकिन हम लोग भी है ना। देखो हमारे सामने काल रोजाना एक को काटता है। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कभी है ना न्यूज़ सुनो, आपको नहीं पता चलता कि आज है ना इतने लोग की मृत्यु हो गई, आज वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग। इवन हम लोग रास्ते से जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। कभी हम देखते हैं किसी को साइलेंट अटैक आता है, लोग मरते हैं। रोज हम देखते हैं ना लोग मर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो काल उनको काट रहा है।
और हम लोग क्या अपने घर में मजे कर रहे होते हैं, अच्छा आज उसकी मृत्यु होगी, अच्छा हो के रहा उनकी मृत्यु थी, मतलब हमको पता है कि हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हम उसी तरह जैसे बकरियां होती है ना, वो चारा खा रही होती हैं, हम लोग भी अपने घर में पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे, बर्गर ऑर्डर करेंगे और ये ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे, फिर हम लोग आनंद से खाते हैं। हमको लगता है कि ये उनकी बारी आई है, हमारा थोड़ी ना टाइम आने वाला है। किसी को लगता है कभी किसी की डेथ का सुनकर कभी किसी को ऐसा फील नहीं होता कि हो सकता है कल मेरी टर्न हो? कभी ऐसा फील नहीं होता, अच्छा उसकी डेथ हो गई, वो अच्छा क्या थे उस, मतलब उसी के बारे में परेशानी होती है, अपने बारे में तो परेशानी नहीं होती ना। जिस तरह उस बकरी को कोई परेशानी नहीं है कि भाई मेरी भी टर्न आने वाली है। लेकिन ये अच्छा जो कसाई होता है ना, वो बकरी को प्रॉपर मील दे रहा होता है, कि जब तक उसको काटेगा नहीं तब तक वो खाएगी तो शक्ति होगी, तो वो ज्यादा अच्छा उसका ना फ्लैश बनेगा ना, तो उसको प्रॉपर मील दे रहा होता है। तो उसी में खुश है कि भाई मुझे तो खाना पीना सब मिल रहा है, एकदम अच्छी जगह पे हूँ तो मैं आनंद से हूँ, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन अगर उसको प्रॉपर मील मिल रहा है, रहने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कसाई को उसके साथ प्यार हो गया है, अब कसाई उसको काटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हमको क्या लगता है, हमको प्रॉपर मील मिल रहा है, खाना पीना सुविधाएं और है ना, धन है, सब कुछ है, घर है, सब परिवार है, तो हमको लगता है कि बस हम लोग सुरक्षित हैं। अगर हमको सब कुछ मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काल को हमसे प्यार हो गया है, काल को प्यार हो गया कि भाई आपकी टर्न आने वाली नहीं है, आप तो आनंद से रहो। आखिर कौन बचा है? हम देखते हैं जैसे हमारे दादाजी की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, दादी की डेथ हो गई, उनकी माता की डेथ हो गई, जितने भी पुराने हम नाम जानते हैं सबकी तो डेथ हो गई। सबको तो काल ने मारा है। अब सबको जब काल ने मारा है तो मुझे क्यों छोड़ेगा, है ना? तो है तो ऐसा कि हम ऐसी खतरनाक जगह पे हैं जहाँ पर कभी भी वो काल जो है ना, वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार लेकर हमारे पीछे पीछे भाग रहा हो। वो बस टाइम को देख रहा होता है कि कितना टाइम बाकी बचा है तुम्हारे पास, उसके अनुसार। तो भगवान बोलते हैं तुम बहुत खतरनाक जगह पे हो। वो बकरियां बेचारी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं एक ऐसा शस्त्र बताता हूँ जिससे तुम इस मजबूत आवन जावन वाले वृक्ष को काट सकते हो। तो वो कौन सा शस्त्र है? भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, असंग का शस्त्र। असंग क्या मतलब होता है कि संसार में रहकर भी संसार में कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। ये मेरा है नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगलो हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो। मेरा मतलब कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण का है और मेरा तो सिर्फ कृष्ण है। अगर ये मेंटेलिटी आ जाएगी ना, फिर बहुत आसानी से हम इस बहुत ही मजबूत जड़ों वाले वृक्ष को काटने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतने टाइम से जो लोग हमारे साथ हैं, जो वस्तुएं हमारे साथ हैं, तो बहुत इतना छोटा है। देखो ये छोटा मेरा किरताल है ना, मैं बोलती हूँ ना कि भाई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये किरताल कहीं पर रह जाएगा मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी, अरे मेरा किरताल कहाँ गया, पता नहीं, मैं इतना अच्छा है, मैं वृंदावन से लेकर आई। मेरा बोलूंगी ना, मेरा कहाँ है, मेरी माला कहीं रह जाएगी, मैं कितना परेशान हो जाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा बताऊँ, मेरे पास जितनी सारी चीजें हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मेरे एक छोटे से एयरपोर्ट्स हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने छोटे से ना, तो कहीं भी पर्स के भी अंदर ऐसे खो जाते हैं। और जब वो मतलब मिलते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बस मेरी दुनिया में उजड़ गई है, मुझे जल्दी से मेरा एयरपोर्ट ढूंढ के दो, क्योंकि उसमें मुझे सारे लेक्चर्स सुनने होते हैं। तो वो बहुत मुझे कंफर्ट लगता है ना, उसमें बहुत ही मुझे स्वीट लगता है। मतलब कितनी आसक्ति है छोटी छोटी चीज़ों से। अपना मोबाइल नहीं मिले 15 मिनट के लिए भी, मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल कहाँ खो गया। हर चीज़ में हमको लगता है कि हमारे अंदर आसक्ति नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इतनी छोटी छोटी चीज के अंदर भी हमारी आसक्ति है, बिल्कुल छोटी। एक पेन भी नहीं मिलेगी, अरे मेरी पेन कहाँ गई, मैंने यहाँ पर पेन रखी थी, मेरी कितना करते हैं हम लोग। तो ये जो मेरा है ना, ये बस आता है हमको।
ये सब कृष्ण का है, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं लेकर आए थे, कपड़े भी पहन के नहीं आए थे, कुछ भी नहीं लेकर आए थे, और संसार को हम कितना मेरा मेरा कहते हैं। तो ये मेरा मेरा की आदत कैसे खत्म होगी, ये शास्त्र बताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान भगवद गीता के श्लोक नंबर 2.58 में बताते हैं कि जब है ना आपको कोई रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि आपको जब कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिल जाती है, जो बहुत स्वादिष्ट होती है, फिर बाकी चीजें जो है ना वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगती है। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आपका किस में अट्रैक्शन है, आपको सुंदरता में अट्रैक्शन है ना, तो छोटी छोटी सुंदर लोग आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन जब संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, तो फिर दूसरी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होगा। आपको क्या अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा जो प्यार करते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है वो आपको मिल जाएगा, फिर तो आपको लगेगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे मिल गया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक भिखारी होता है, आचार्य गण एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक भिखारी होगा ना, अगर भिखारी को वो 2 दिन से खाया नहीं है ना, कुछ खाया नहीं है, तो उसको कोई है ना एक रोटी देगा, सूखी रोटी देगा, उसके ऊपर आलू की सब्जी रख के देगा, वो भी कल की रखी हुई, तो वो कितना खुश होगा कि भाई मैंने तो 2 दिन से नहीं खाया, मुझे बहुत अच्छा मिल गया। मतलब उसको तो लगेगा कि ये तीनों लोग की सामग्री है मेरे लिए, क्योंकि मुझे 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर आप उसको बोलोगे अरे 2 दिन का पुराना प्रसाद है, इसको फेंक दो, ये अच्छा नहीं है, तुम फेंक दो, वो क्या बोलेगा, भले तुमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, बस मुझे खाने दो। वो नहीं फेंकेगा ना, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, उसको अपनी भूख को खत्म करने के लिए यही चीज मिली है। आप उसको कितना भी बोलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप अगर एक और काम करते हो, क्या करते हो, गरम गरम है ना सब्जी, राइस, पकोड़े, पूरी, हलवा सब बनाते हो, और इधर एक थाली सजाते हो, और उसको बोलो ये तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर वो तुमने दे दिया उसको, फिर क्या वो बोलेगा कि मैं तो ये सूखी रोटी खाऊंगा, उसको उसी टाइम पर फेंक देगा कि भाई मुझे बहुत कुछ मिल गया, अभी मुझे ये खाने की इच्छा नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ये संसार जिससे हम प्यार करते हैं, पूरा ये संसार जो है ना वो सूखी रोटी की तरह है। हमको लगता है, कोई बोलेगा ना ये आसक्ति छोड़ दो, इसके आगे ये कुछ भी नहीं है, संसार में प्यार नहीं है, संसार में ना सिंसियरिटी नहीं है, कोई हमसे सच्चा नहीं है, आप संसार को छोड़ दो। फिर वो संसार में ही एक जगह से दूसरी जगह अपनी अट्रैक्शन लगाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह से धोखा भी रोज खाता है। जिससे भी प्यार करेंगे, जिसको भी अपना सोचेंगे, उससे धोखा भी खाएंगे, लेकिन फिर भी आसक्ति इधर ही है, क्योंकि हमारे पास और कुछ चाहिए नहीं, ये संसार ही दिखता है ना। तो संसार में हमको ये सूखी रोटी से इतना प्यार है कि बस हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन भगवान क्या है, वो भगवान तो 56 भोग की प्लेट है। जब उसको 56 भोग गर्मा गर्म मिल रहे हैं, फिर संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये है, भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि आप अगर मेरे से प्यार करना शुरू करोगे तो संसार की आसक्ति खुद ब खुद छूट जाएगी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि हमको संसार में हर चीज कितनी अच्छी लगती है, खाना पीना, लेकिन जब से हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आते ना, फिर हमको लगता है बस अभी मुझे किधर जाने का दिल नहीं करता, मुझे होटलिंग करने का दिल नहीं करता, मुझे ना पार्टीज में जाने का दिल नहीं करता, बस मेरा दिल करता है घर में बैठूं, मैं नाम जप करूं, मैं भगवान का कीर्तन करूं, शास्त्र पढ़ूं, भगवान के से खुद ब खुद कैसे भगवान से टच होते ना जब, तो भगवान के अंदर, भगवान का नाम क्या है पता है, रसो वैसह, रसराज है कृष्ण। रसराज मतलब पूरे के पूरे वो रस के बने हुए हैं, रस के बने हुए। जैसे एक मिश्री देखी ना आप लोगों ने, मिश्री जो है ना वो पूरी की पूरी मिष्ठान से बनी है। आप उसको ऊपर से टेस्ट करोगे, नीचे से करोगे, सेंटर से करोगे, वो कितना टेस्ट होगा, उसके अंदर मिठास होती है ना। कोई ऐसी जगह तो नहीं है ना मिश्री की कि यार यहाँ से फीकी लग रही है, वो सारा मीठा है ना। उसी तरह से कृष्ण जो है ना वो पूरा का पूरा रस से बना हुआ है, आनंद से बना हुआ है, स्वीटनेस एंड है ना, भगवान टेस्ट से बना हुआ है। तो भगवान को कोई किसी भी तरह से टेस्ट करता है ना,
फिर वो इतना उनकी ओर खुद ब खुद, इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण का क्या मतलब होता है, कृष्ण का मतलब होता है अट्रैक्टिव। वो आपको किस तरह से अट्रैक्ट करता है ना, आपको खुद भी समझ में नहीं आता। हम शुरू में भक्ति करने के लिए कृष्ण को नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति करने के लिए कृष्ण की शरण में नहीं आते, बस ऐसे ही ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कोई बताता है कृष्ण के बारे में, सुनते हैं, या कोई कीर्तन होता है उसको सुन लिया, या किसी ने बोल दिया तो हम लोगों ने श्रवण कर दिया और बस फंस गए। हम सब ऐसे ही फंसे, जैसे मछली होती है ना, पानी में डालते हैं कोई उसके अंदर लगा के, फिर उसमें कैसे फंस जाती है। वो दूर से सोचती है कि मैं इसको खा के निकल जाऊंगी, लेकिन फंस जाती है। तो उसी तरह से हम लोग भी ना भक्ति में ऐसे आते हैं। कोई भक्त मिलता है हमको, थोड़ा सा टेस्ट दिखाता है कृष्ण का, थोड़ा सा है ना, कोई कीर्तन सुना दिया, कोई भगवान की भगवद गीता का श्लोक सुना दिया, कोई भगवान की लीला सुना दी, फिर हम सुनते हैं, हम बोलते हैं कि भाई यहाँ थोड़ा देख लेते हैं यार कृष्ण वाला क्या बता रहा है ना, तो सुन लेंगे और सुनते सुनते फिर बस प्यार हो जाएगा। और एक बार जब कृष्ण का टेस्ट चख लिया ना, फिर सारा स्वाद इतना फीका लगने लगता है, हम लोग चाहते भी है ना, फिर भी संसार स्वादिष्ट नहीं लगेगा। हमारे एक आचार्य राधानाथ महाराज वो बोलते हैं ना, जो कृष्ण की भक्ति में आ गया है ना, वो बहुत बुरा फंसा है। जैसे एक बहुत बड़ा गैंग होता है ना, उसमें कोई फंस जाता है, उसमें आना आसान है। जैसे वो भाई लोग का गैंग होता है ना, उसमें आना बहुत आसान है, लेकिन आपने उनके राज जान लिए, अब आप निकल नहीं सकते हो, मरना पड़ेगा उधर ही, लेकिन निकल नहीं सकते हो। उसी तरह से कृष्ण की जो भक्ति है ना, शुरू में हम आसानी से आ सकते हैं। अब हम लोग चाहने, अब जैसे हम लोगों ने नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया, अब हम चाहेंगे ना कि अब हम बस बहुत हो गए यार, कितना सारा दिन सुबह को मंगला आरती करो, फिर 16 माला जप करो, फिर कथा सुनो, फिर ये बहुत फटीक हो जाते हैं कि भाई हो गया, मतलब टेस्ट ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत थक गए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा संसार में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर आप जाके देखो, किसी पार्टी में जाओ, मजा ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं मजा, क्योंकि आपने हायर टेस्ट को टेस्ट कर लिया। अब आप बोलोगे यार बस जाना है, मजा नहीं आ रहा किधर। और दूसरे जो फ्रेंड्स होंगे ना, जो भक्त नहीं होंगे, उनकी गैदरिंग में कहीं पर चले जाओ, आप जाओगे ना, वहां पर वो लोग सब उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, बोले दिमाग तो फाटे, निकलो इतना का, मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि आप है ना, आप बस बुरी तरह से फंस गए हो। कृष्ण ऐसा है, कृष्ण को बोलते हैं ये बहुत त्रिभंगी है, भगवान कृष्ण को बोलते हैं त्रिभंगी। त्रिभंगी का क्या मतलब होता है, वो 3 टाइप से टेढ़ा है। टेढ़ा है ना, इसलिए टेढ़े का क्या मतलब होता है, जैसे एक सीधी बोतल होती है ना पानी की, उसमें सीधी लकड़ी डालेंगे तो आराम से चली जाएगी, टेढ़ी होगी तो बहुत मुश्किल से जाएगी, जाएगी नहीं ना। और टेढ़ी जब जाती नहीं है, लेकिन अगर चली भी गई ना, किसी तरह से आपने बड़ी मुश्किल से डाल दी ना, फिर निकलेगी नहीं। अब क्योंकि अंदर जाके खुल जाएगी, फिर निकलेगी नहीं। उसी तरह से कृष्ण है ना, उसका जिसने नाम त्रिभंग रखा है ना, उसको तो है ना दोनों हाथ से सैल्यूट करके दंडवत करना है। क्योंकि ये कृष्ण ऐसा है ना, आसानी से किसी के दिल में घुसता ही नहीं है। आप देखो, देवी माता का भंडारा होगा, सारा पंडाल भरा हुआ होगा, शिव जी का होगा, सारा पंडाल भरा हुआ होगा, और है ना जैसे झूलेलाल का होगा, सारा पंडाल, किसी संत का होगा, सारा पंडाल फुल होगा। जहां भी कृष्ण कथा होती है, कितने लोग होते हैं, है ना, कितने थोड़े से, मतलब वो सिलेक्टेड होते हैं, बस इतना होता ही नहीं कि भाई वो पूरा भरा हुआ दिखता नहीं है ना, थोड़े से होते हैं। क्योंकि कृष्ण ऐसा है ना, इतना टेढ़ा है कि वो हर किसी को समझ में आता ही नहीं है, हर किसी के दिल में घुसता नहीं है। लेकिन इतना टेढ़ा है कि एक बार घुस गया ना, फिर चाहे संसार भर की कोशिश कर लो ना, उधर से निकलेगा नहीं। बाकी जो देवी देवताओं के भक्तों के साथ वो कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर, वो चेंज करते रहेंगे, अपने इष्ट को चेंज करते रहेंगे, आप देखो। लेकिन जो कृष्ण भक्त होंगे ना, वो जिए चाहे मरे, चाहे भगवान उनको कुछ परीक्षा ले, चाहे जो भी ले, लेकिन उनको पता है नहीं, कृष्ण ही मेरा है। वो कृष्ण की, क्योंकि उनको पता है ना, हाईएस्ट अचीवमेंट उनके बाद और उसके बाद कुछ है ही नहीं। कृष्ण के भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण से बढ़कर और कुछ नहीं है।
लेकिन जो दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं उनको पता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज मिल जाए या थोड़ी सी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए आए। अब यहाँ नहीं हो रही है तो दूसरी दुकान पे चले जाओ, यहाँ नहीं हो रही तो दूसरी दुकान पे चले जाओ। भक्त जो है ना वो दुकान चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अभी सुपरमार्केट में है, दूसरी दुकान नहीं है, यहीं पर मिलेगा जो भी मिलने का है, चाहे संसार का सुख, चाहे आध्यात्मिक सुख, चाहे मोक्ष या जन्म मरण का चक्कर बंद, जो भी मिलना है मिलेगा यहीं से। हो सकता है कि किसी मतलब स्टॉल पे नहीं मिला है, स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन दुकान यही है बस, अब चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा है, जब हमें कृष्ण की महिमा का पता चलेगा तो हमको कृष्ण से प्यार होता जाएगा और धीरे धीरे हम कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। वो कैसे होगा? जब हम कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो संसार से असंगता, संसार की ओर की आकर्षण वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, ये वाला श्लोक समझ में आ गया है ना? किसी को कोई कुछ पूछना है? अच्छा, हाँ, भले दुनिया के लिए आने कल मेरी के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पता तो कालों में मैंने सोचा आला नहीं पर अंदर में मां ब्रह्म ज्ञान को नहीं पता मुझे बड़ सोचो अंदर में इज्जत करनी मुझे बड़ तो मां के बच्चे खेलन कोई मुझे कुछ बाकी चिंता ना करे बात आज जो से हां मुझे ताई भाभी को मतलब दिली को नहीं तेरी भगवान श्री के अब वही है अब वही ताकि है जिला में खेलन में खेलन में होता मुझे भगवान सुनते काम मुझे भगवान जगह पे कमाऊंगा हरे कृष्णा में छटा मुझे ना माता के सत्संग दो रात ही मांगनी जमा मुझे ना मरे इतना वही सब भूली मुझे ना दो मन में गए छटे भगवान विरम ज्ञान में भगवान को करने गुरुद्वारे में भगवान को करने राधा स्वामी में मैंने कितने भी क्या कर गए करके सत्संग कमाऊंगा बल्कि भगवान वाणी जगह इंसान नहीं बैठ पाओगे ठीक है अंदर में वो बैठ पाओगे तब आप मान में बुला मुझे भाभी ना मुझे खबर है अंदर नहीं तो मैं मोदे चाहिए मान मुझे ताम खबर है बात मत दस कोण नहीं त्या विषयाचे मुख्य जरूरी केला ना केला मी हो एकदा पीलो ना केला मुझे मुख्य वही खबर ना मुझे कितना बनी ये अंदर है तो ऐसा जरा क्या ताम में यकीन है मामू के से मास कोने छापू से जाएंगे अंदर मुझे बाबे ने ताक पड़ा था मुझे जी जी आप कीर्तन कराई दी उन्हें आप तो मानो परम परम ज्ञान में भगवान को करेगा मुझे देखो भगवान को पता अभी तो वही भगवान साक्यो है अभी तो वही साक्यो भगवान है पर चाहे ना हर की भी अलग है सोचन भी भगवान गीता में शब्द था, श्रीमद् भगवत गीता 7.19 में कि बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जेके ब्रह्म ज्ञानी बण जंदा आहिनि कोई डायरेक्ट सां मूंखे स्वीकार भगवान जे रूप खे स्वीकार कोन कंदा आहिनि। भगवान चयो पंहिंजा भगवान जा शब्द आहिनि कि उहे जेके ब्रह्म ज्ञानी हूंदा आहिनि या कि जेके ज्ञान प्राप्त कंदा आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजे पास अचण जे लाइ घणा ई जन्म पार करणो पवंदो। भगवान जा शब्द आहिनि, तव्हां खोले ॾिसजो 7 अध्याय आहे श्लोक नंबर 19 हुन में लिखियल आहे बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। कि जेको ईअं चई छॾे न भई कृष्ण ई त ब्रह्म ज्ञान आहे, कृष्ण ई त उहो ब्रह्म आहे, कृष्ण ई त परमात्मा आहे, कृष्ण ई त सभु कुझु आहे, जेको ईअं चए न भगवान चवंदो उहो कोई ज्ञानी कोन्हे, स महात्मा, उहो महात्मा आहे। सुदुर्लभ, सुदुर्लभ मतिलबु उहो कोई एॾो आसानी सां मिलण वारो कोन्हे, उहो संसार में को हिकिड़ो मिलंदो।
उनको हिकिड़ो हूंदो, लखनि में लभंदो कोन आहे, हज़ारनि में हूंदो कोन आहे, सवनि में ॾिसबो कोन आहे, अहिड़ो को हूंदो आहे जेको इहो सोचींदो आहे कि कृष्ण ई सभु कुझु आहे। बसि ठीकु आहे, मूंखे कृष्ण मिलियो, हाणे मूंखे न उहो ब्रह्म बि आहे, परमात्मा बि आहे, उहो ई भॻवानु आहे, उन जी मां भक्ति कयां थी त सभु कुझु थी वियो। हाँ, भक्ति करण वारे खे इन्हनि चीज़नि जी फिकर करणु खपे बि कोन, वरना भक्ति कीअं कंदासीं। असां त दास आहियूं जो असां त कंदासीं सेवा पंहिंजी। चलो 2 मिंट हरिनाम कीर्तन करे कथा कमाईंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे
महबूबा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधार हरे